हेलो एंड वेलकम। मैं हूं सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिखाएंगे गॉड्स प्रेजेंट 60th ब्रिटानिया फिल्म फेयर अवार्ड्स नाइट के रेड कार्पेट पर हुआ क्या धमाल, और साथ ही आपको दिखाएंगे ऐसे कुछ सिजलिंग हॉट स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। Finally, the much-awaited night took place. Well, I'm talking about Gauze presents 60th Britannia Filmfare Awards Night, जिसके रेड कार्पेट की सिजलिंग हॉट अपडेट से होगी आज की हमारी शो की बम्पर ओपनिंग। तो आइए देखते हैं who nailed it and who didn't on the Filmfare red carpet. Finally, Gauze presents 60th Britannia Filmfare Award Night लेकर आया B-Town के सभी बड़े चेहरों को साथ। Well yes, the sizzling hot red carpet dazzled with B-Town celebs। और आज हम आपको हमारी टॉप स्टोरी में दिखाएंगे इसी रेड कार्पेट के हॉट अपडेट्स, जिसकी शुरुआत होगी इस अवार्ड नाइट के बम्पर विनर से। शाहिद कपूर और कंगना रनौत को जहां मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड फॉर हेदर एंड क्वीन रिस्पेक्टिवली, वहीं क्वीन बैग द बेस्ट फिल्म अवार्ड एज वेल। आलिया भट्ट को मिला क्रिटिक्स का बेस्ट एक्टर इन फीमेल अवार्ड फॉर हाईवे। ऑल्सो Tabu, who looked like a black lady herself in that shimmery black gown, won the Best Supporting Role Female for Heather, while KK bagged it for the male category. Best Director के लिए मिला विकास बहल को award for his fun-filled film Queen. And now, some quick updates from the red carpet. शुरुआत करते हैं उन बिगीज से जो लेकर आए इस अवार्ड नाइट में ग्लैमर का हाई कोशेंट। खान्स में से स्पॉट किया हमने यहाँ सलमान खान को। सरप्राइजिंग, isn't it? Even we were. लेकिन लुकिंग एब्सोल्युटली हैंडसम एंड ब्लैक, ज़ूम ने एक्सक्लूसिवली कैप्चर किया सलमान को ऑन द रेड कार्पेट। और सिर्फ इतना ही नहीं, सलमान ने करण जौहर, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कपिल शर्मा के साथ मिलकर यहाँ दीपिका के साथ किया जुम्मे की रात का सिग्नेचर स्टेप भी। दीपिका, who wore an off-white trailed gown, was surely enjoying all the attention। तो जहाँ सलमान ने जमाया रंग, तो फिर रणबीर कैसे पीछे हटते। रणबीर, who looked dapper in that classic black suit, gave a scintillating performance as well। वहीं दूसरी तरफ young vibrant श्रद्धा and Alia kept it stylish in black and white respectively। Keeping up the glamour for the night was Sonam Kapoor, जो दिखी going Indo-Western in that attire। Sonam happily met friend and co-star Fawad Khan also here and posed for the Shutterbug। She was also caught chatting up with Diya and her hubby on the red carpet। चैटिंग की बात से आपको एक और लॉन्ग सेशन ऑफ चैटिंग का अपडेट देते हैं। रिपोर्टेडली जया बच्चन और रेखा के बीच हुआ एक लॉन्ग चैट इनसाइड द वेन्यू। Wonder what they spoke, just like we are wondering what Ranveer, Shahid and Varun are sharing here in this pic। बाकी स्टार्स की बात करें तो यहाँ देखी काजोल looking absolutely pretty in that beige gown। Varun Dhawan skipping black and going for white was a good change to see। Also, Arjun Kapoor pulled off his look with much ease and looked handsome in his dinner jacket। Siddharth Malhotra, Ileana D'Cruz, Sunny Leone all chose color black for the night। Tiger Shroff and Kriti Sanon candidly posed for the Shutterbug just like Mr. and Mrs. Nene, while Sonali, Goldie Bahel, R. Madhavan were having a quick chat on the red carpet। Now what took us for a shock here was Nargis Fakhri's appearance. Looking absolutely hideous in that weird attire, the fringes just doesn't suit you, Nargis। खैर, बाकी सेलेब से हमने यहाँ कैप्चर किया अनुराग कश्यप, मनीषा कोइराला in pink anarkali, KK Gurmeet with wife, Jackie Bhagnani not wearing his heart on the sleeve but on his shirt this time, Randeep Hooda, Shankar Mahadevan, Umang, Sharif, Gauhar Khan in black again, Neha Dhupia, Ali Fazal, Eli Avram, Richa Chadha और नील नितिन मुकेश को। और कुछ इस तरह खत्म हुई The Rocking Gauze presents 60th Britannia Filmfare Award Night। Bureau Report, Zoom, Mumbai। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। Those who missed out on our show, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन।
एसआर के दीपिका की मल्टी स्टारर हैप्पी न्यू ईयर बॉक्स ऑफिस पर नंबर्स तो क्रिएट कर चुकी है, लेकिन क्रिटिकल अक्लेम और ऑडियंसेस का प्यार मिलने में रह गई थी थोड़ी कमी। शायद यही बात एसआर को भी कहीं न कहीं पता है, इसलिए उन्होंने रिसेंटली ये कोट दिया वेयर ही सेड, आई डोंट थिंक आई शुड बी नॉमिनेटेड फॉर हैप्पी न्यू ईयर। वेल यस, एक रीसेंट अवार्ड नाइट में अवार्ड मिलने के बाद एक दूसरे अवार्ड फंक्शन में एसआर को नॉमिनेट तक नहीं किया गया। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था that he hasn't acted well enough and he doesn't think he should be nominated. He also added that he did one film last year and since he has hosted 2 shows, he knows that there are 7 or rather 70 other people who are better than him. He doesn't think he should be nominated for acting for Happy New Year. Well, Shahrukh, we also think कि आपकी ये modesty इस बार थोड़ी justified है। अनुष्का शर्मा हाइट 1.75 मीटर, आमिर खान हाइट 1.68 मीटर, फिर भी ज्यादा हाइट वाली हीरोइन के साथ पीके में नहीं हुई कोई प्रॉब्लम। दीपिका पादुकोण हाइट 1.74 मीटर, शाहरुख खान हाइट 1.73 मीटर, फिर भी ज्यादा हाइट वाली हीरोइन को लेकर हैप्पी न्यू ईयर में भी कोई बात सुनने में नहीं आई। पर सलमान खान और करीना कपूर की हाइट में कोई बड़ा अंतर न होने पर भी बजरंगी भाईजान में सलमान खान की हाइट बन गई है एक बड़ा इशू, और ये खबर बन गई है इस वीक की नंबर 9 बस में का, क्योंकि हाइट के इशू को लेकर बजरंगी भाईजान के सेट से सलमान खान के स्टारी एटीट्यूड की न्यूज आ रही है। सोर्सेस की माने तो एक सीन के दौरान सलमान ने खुद के क्लोज शॉट फुल कॉस्ट्यूम और शूज पहनकर किए, लेकिन जब ये सीन को करीना के साथ शूट करना था तब सलमान ने अपने शूज निकाल दिए। सलमान को रिक्वेस्ट किया गया टू वेयर हिज शूज सो दैट ही मैचेस अप टू करीनाज हाइट, पर सलमान तो अपनी जिद पर ही अटके थे। उन्होंने साफ मना कर दिया ऐसा करने के लिए। इनफैक्ट कबीर खान ऑल्सो केम इन एंड रिक्वेस्टेड द एक्टर टू डू सो। इवन आफ्टर दैट सलमान डिडंट लिसन टू हिज इंस्ट्रक्शंस। कहना पड़ेगा कि सलमान को कन्विंस करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और वो वही करते हैं जो उनका मन कहता है, और उनके इस अनप्रोफेशनल एटीट्यूड को डायरेक्टर्स भी झेलते हैं। पर जब दूसरे सुपरस्टार खान्स अपने से ज्यादा हाइट वाली हीरोइंस के साथ भी कंफर्टेबली शूट करते आ रहे हैं, ऐसे में सलमान ने ऑलरेडी उनसे कम हाइट वाली करीना के साथ हाइट को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा कर दिया। लेकिन एज सलमान हिमसेल्फ सेज, वो दिल में आते हैं पर समझ में नहीं। काउंटडाउन पर इस हफ्ते नंबर 8 की हाईलाइट बनी सोहा अली खान और कुणाल खेमू की ग्रैंड वेडिंग। वेडिंग पर सोहा दिखी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल इन दैट एलिगेंट बेगम अटायर। वी लव द लहंगा। वहीं कुणाल भी दिखे लाइक अ प्रिंस। बाकी की फैमिली की बात करें तो करीना कपूर दिखी वेयरिंग अ सिंपल पिंक व्हाइट नेट साड़ी। शी पेयर्ड इट अप विद मिनिमम ज्वेलरी। वहीं सैफ लाइक अ प्रॉपर एल्डर ब्रदर दिखे राइट बिसाइड द कपल थ्रू आउट, लुकिंग एब्सोल्युटली डैशिंग लाइक अ नवाब। What caught our attention was Saif's son Ibrahim, जो दिखते हैं पूरे सैफ के फोटोकॉपी। Seems like छोटे नवाब टाइटल suits him best now. Wedding पर पटौदी फैमिली ने काफी पिक्चर्स क्लिक करवाए। Check out this extremely adorable selfie pic जो सोहा ने खींची। वहीं वेडिंग रिसेप्शन पर ब्राइड एंड ग्रूम looked stunning in pink and blue. करीना कपूर खान दिखी wearing a hot लहंगा, और सैफ ने चूज किया रॉयल ब्लू for the night. Also spotted were Amrit and Malaika posing with Bebo. साथ ही यहाँ दिखे युवराज सिंह भी, while Saif took out some time to pose with the Kapoor ladies as well. Karishma, Babita and his lady love Kareena. इस हफ्ते डायरेक्टर विकास बहल ने काउंटडाउन पर जगह बनाई ऑन द 7th पोजीशन। क्वीन में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से कंगना ने भले ही सबका दिल जीत लिया हो, लेकिन बॉलीवुड में फिल्म अवार्ड्स ऑर्गेनाइज करने वालों को शायद कंगना इम्प्रेस नहीं कर पाई। तभी तो ज्यादातर फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड न मिलने पर कंगना थोड़ी सी खफा है। कंगना को लग रहा है कि उनके साथ पार्शियलिटी हो रही है, क्योंकि कोई मैरी कॉम के लिए प्रियंका या फिर 2 स्टेट्स और हाईवे के लिए आलिया का नाम ले रहा है। वैसे जब हमने कंगना को अवार्ड्स में जगह न मिलने की बात क्वीन के डायरेक्टर विकास बहल से पूछी, तो उन्होंने कंगना को मिले रिवॉर्ड्स को अवार्ड से ज्यादा इम्पोर्टेंट बता दिया। For me, Kangana's won long time before the award ceremony started, so it doesn't matter. Okay. So I think she's a winner. She's done a great job. It's a performance which will be remembered for many, many years to come. And the amount of appreciation she's got, she's already got the awards. तो सुन लिया आपने क्वीन में कंगना से इतनी शानदार एक्टिंग करवाने वाले उनके डायरेक्टर का क्या कहना है। वेल, इतने अप्रिसिएशन के बाद अगर कंगना अवार्ड्स एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो इसमें गलत क्या है। लेकिन लगता है कंगना की किस्मत में ऑडियंस की तालियां तो हैं, पर अवार्ड्स नहीं।
काउंटडाउन में आगे है रणबीर और कटरीना का अपडेट, जिनका रिलेशनशिप इज गोइंग स्ट्रॉन्ग बाय द डे। कभी आते हैं इनके एंगेजमेंट के रूमर्स, तो कभी शादी की खबरें। बिसाइड्स द फैक्ट दैट द टू आर लिविंग इन टुगेदर, नाउ द अपडेट इज दैट कि इन दोनों की नजदीकियों में आ सकती हैं दूरियां भी। लेकिन इफ यू थिंकिंग कि अगर इनका ब्रेकअप है पास, देन होल्ड योर हॉर्सेस, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दरअसल इनके बीच की दूरी आ सकती है ड्यू टू कटरीना's प्रोफेशनल कमिटमेंट। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो कुछ दिनों के लिए रणबीर कपूर को कटरीना कैफ से दूर रहना होगा, और जो इनकी इस दूरियों का रीजन है वो है फितूर के डायरेक्टर अभिषेक कपूर। सुनने में आया है कि फितूर के डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने रणबीर कपूर को साफ कह दिया है कि वो अपनी फिल्म के सेट्स पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहते और उन्हें अपनी फिल्म जल्द से जल्द कंप्लीट करनी है। इसीलिए बेहतर होगा कि रणबीर फ्रीक्वेंटली फितूर के सेट्स पर विजिट ना करें। दरअसल फितूर में कटरीना भी हैं और अपेरेंटली इन दिनों फितूर का शूट काफी जोरों शोरों से चल रहा है और अभिषेक बिल्कुल नहीं चाहते कि ये फिल्म डिले हो, और इसीलिए अभिषेक ने इन लव बर्ड्स को कर दिया है अलग। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। वेल, आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। आइए देखते हैं इस हफ्ते की बाकी न्यूज मेकर्स की इंटरेस्टिंग खबरें। किक के साथ जैकलीन और सलमान खान के लिंकअप की खबरों को मिली किक स्टार्ट, और सलमान की रोमानियन मॉडल फ्रेंड लूलिया वंतूर से नजदीकियों का किस्सा तो उससे भी पुराना है। नया अपडेट तो ये आया है कि इस हफ्ते सलमान की ये दोनों अलेज्ड गर्लफ्रेंड्स भी आपस में फ्रेंड्स हैं। चौंक गए ना आप ये सुनकर? खबर चौंकाने वाली ही है, क्योंकि इससे पहले जब भी किसी बड़े सुपरस्टार की लव लाइफ का किस्सा सुनने में आया है, उसमें प्रीवियस गर्लफ्रेंड और करंट गर्लफ्रेंड के बीच कैट फाइट की गॉसिप सी बनती रही है हेडलाइंस। लेकिन यहाँ तो कहानी में आ गया है ट्विस्ट, क्योंकि सोर्सेस की माने तो जैकलीन फर्नांडिस और लूलिया वंतूर काफी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करती हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, लास्ट मंथ सलमान खान के बर्थडे पर उनके पनवेल फार्म हाउस में रखी गई पार्टी के दौरान भी जैकलीन और लूलिया ने काफी अच्छी बॉन्डिंग शेयर की। गौर करने वाली बात यह है कि एक ही कलर की जैकेट में नजर आने के बाद रिसेंटली उसी पनवेल वाली बर्थडे पार्टी से रिसेंटली सलमान और लूलिया के लिंकअप का नया फसाना सुनने में आया था, और अब सोर्सेस से पता चला है कि उसी पार्टी में जैकलीन और लूलिया भी एक दूसरे से काफी अच्छी तरह जेल कर रही थी, और इसी तरह बन गया ये अजब गजब लव ट्रायंगल इस वीक का नंबर 5 बज़ मेकर। SR के दीपिका और रोहित शेट्टी का हिट ट्रायो चेन्नई एक्सप्रेस में ऐसा कमाल दिखा गया कि आजकल ये फिल्म इंटरनेशनली रिपब्लिक डे पर स्क्रीन की जाती है। तो ऐसे में जाहिर है कि SR के दीपिका और रोहित के फैंस ईगरली वेट करेंगे टू सी व्हाट द ट्रायो इज डूइंग अगेन। बट काउंटडाउन में अब जो खबर हम आपको दिखाएंगे वो शायद ऐसे फैंस को कर दे थोड़ा सा निराश, क्योंकि SR के रोहित को इस बार ज्वाइन करेंगी दीपिका नहीं बल्कि कटरीना कैफ। वेल यस, जब तक हैजा में एक स्ट्राइकिंग केमिस्ट्री क्रिएट करने के बाद दिस डुओ विल बी सीन स्टारिंग इन रोहित्स नेक्स्ट। इस फिल्म में वरुण धवन के आने की भी खबरें हैं। सोर्सेस की माने तो ये फिल्म लूजली बेस्ड होगी अमिताभ और रजनीकांत की फिल्म हम पर। माना जा रहा है कि शाहरुख अमिताभ बच्चन वाला रोल प्ले करेंगे और वरुण गोविंदा के रोल में दिख सकते हैं। वहीं जहां तक बात है कटरीना कैफ की, तो वो किमी कार्टर का रोल निभा सकती हैं, और ये मुमकिन है कि वो जल्द ही जुम्मा चुम्मा करती भी नजर आएंगी। So guys, if you want to catch SRK and Katrina's sizzling hot chemistry dazzle the silver screen yet again, then keep a track on this one. कोई बात नहीं, वो अपने बन के राजा है, लेकिन वो आए हमारे लिए, हमारी इतनी इज्जत दी हमको, उसके लिए बहुत खुश। जिस मन के राजा की बात यहाँ संजय लीला भंसाली कर रही हैं, वो है शाहरुख खान, और जहाँ आने की बात का जिक्र संजय ने किया वो है उनकी ही रखी गई पद्मश्री मिलने की खुशी की पार्टी, जहाँ शिरकत करने आए बी टाउन के और भी सेलेब्स, और इसीलिए ये बैच बन गया इस वीक का नंबर 3 बज़ मेकर। बात SRK की निकल ही गई है तो शुरुआत उनसे ही करते हैं। देवदास में संजय के साथ काम कर चुके शाहरुख खान ने यहाँ दी एक ब्रीफ अपीयरेंस। वो यूँ आए और यूँ चले भी गए, बट मीडिया के लिए वेव करना नहीं भूले। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट वाज संजय's मैरी कॉम यानी प्रियंका चोपड़ा, जो यहाँ आई इन अ टोटल रॉक चिक लुक। डॉनिंग अ फर जैकेट, प्रियंका दिखी यहाँ टोटली स्ट्रेस्ड। Seems like PC is having a tight schedule nowadays. वैसे यहाँ प्रियंका को कंपनी दे रही थी उनकी मॉमी डियर। Moving on to PC's contemporary, we also spotted Kangna Ranaut here, जो हर अवार्ड को तो स्किप कर रही हैं, लेकिन किसी को अवार्ड मिलने की पार्टी को नहीं। कंगना यहाँ दिखी wearing a teal blue dress and patent curls to add the cuteness. अब संजय लीला भंसाली की पार्टी हो और उनके बाजीराव यहाँ ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? Well yes, as always high on energy and spark was Ranveer Singh, hiding his baldness in that hat.
Also spotted here were Shraddha Kapoor, Shruti Hassan, Manisha Koirala, Rohit Roy, Prasoon Joshi, Richa Chadha, to name a few. Namaste, señorita. Bude desho mein. You know what I mean. Go to the movies and applaud actors like Shah Rukh Khan. Yeah, and when you celebrate athletes like Milkha Singh or Mary Kom. ओबामा के इन डायलॉग्स पर पूरे देश के लोगों ने जमकर तालियां बजाई। पूरे मीडिया में ओबामा की ये स्पीच छाई रही। सब ने अपने अपने तरीकों से इस स्पीच को डिस्क्राइब किया, लेकिन शाहरुख खान की शान में अमेरिकन प्रेसिडेंट की ये बात सलमान खान के फैंस को पसंद नहीं आई। सोशल मीडिया पर इन फैंस ने फिर वो ही किया जो ना तो सलमान खान चाहते हैं और ना ही शाहरुख खान। ओबामा ने जो कुछ भी कहा वो उन्होंने इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पर होने वाली पॉपुलैरिटी के आधार पर कहा। वो अलग बात है कि एक बार अमेरिका ने शाहरुख खान को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर तलाशी के लिए रोक लिया था, लेकिन फैंस तो फैंस हैं, वो फैसला करने में थोड़े जज्बाती हो जाते हैं। इसीलिए तो उन्हें फैन कहा जाता है, क्योंकि वो दिमाग से ज्यादा दिल की बातों में आकर फैसले ले लेते हैं। इन बातों को ज्यादा तूल ना देते हुए इस बात पर ज्यादा गौर करना चाहिए कि शाहरुख खान और सलमान के बीच कंपैरिजन में पड़ने की बजाय इस बात को भी ध्यान देना चाहिए कि सलमान इस बात पर साफ कह चुके हैं, जो भी शाहरुख खान के लिए इस तरह की बातें करेगा, वो चाहे कितना भी बड़ा फैन हो, सलमान उसे कोई भाव नहीं देंगे। मुझे तो एक चीज से शदीद नफरत है, ये जो फैन वॉर्स जो चलता है ना, बिल्कुल जो इंसान मेल फीमेल शख्स बच्चा बूढ़ा मेरा फैन हो, उसे कोई अधिकार नहीं है किसी दूसरे एक्टर को नीचे दिखाने का। एंड इफ दैट पर्सन इज डूइंग दिस बीइंग माय फैन, ही इज नॉट अ फैन, आई डिसओन हिम। ये बात जूम ने एक्सक्लूसिवली आपको तभी दिखाई थी जब सलमान की फिल्म किक रिलीज हुई थी। बाद में तो शाहरुख और सलमान ने दोस्ती की ऐसी मिसाल पेश कर दी कि कोई शायद ही कहेगा कि अब उनके दिल में कुछ बात है। इसलिए फैन को एक बार फिर ये सोच लेना चाहिए कि इस तरह की बातें खान की दोस्ती में बिल्कुल भी दरार नहीं डाल पाएंगी। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन के टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस हफ्ते हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। करीना को किसने करी ना? करीना को ना कहने की हिम्मत तो सैफ को भी नहीं है, पर एक स्टार हैं जिन्होंने करीना कपूर के साथ फिल्म करने से इनकार कर दिया है, और इसीलिए ये न्यूज है इस वीक की नंबर 1 बज़ मेकिंग न्यूज। जिस फिल्म की बात हो रही है उस फिल्म का नाम है उड़ता पंजाब, जिसकी उड़ती उड़ती कई खबरें हमने आपको जूम पर दिखाई हैं, जो कभी शाहिद से रिलेटेड हैं, तो कभी आयुष्मान खुराना से, तो कभी आलिया भट्ट से भी। उड़ता पंजाब डेढ़ इश्किया के डायरेक्टर अभिषेक चौबे की फिल्म है, जिसमें करीना है, शाहिद कपूर हैं, आलिया भट्ट हैं और फवाद खान भी थे। पर फवाद खान इस फिल्म से दूर हो गए। फवाद खान की जगह एक्टर दिलजीत दोसांझ ने ले ली है। बाद में जब जूम ने स्टोरी की थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि फवाद खान ने तो खुद ही करीना कपूर के साथ काम करने से इनकार कर दिया। क्यों? इसका जवाब जूम को सूत्रों ने दिया है कि फवाद खान को लगता है कि वो करीना के मुकाबले काफी यंग है और वो उनके सामने अगर फिल्म में जोड़ी बनाते दिखेंगे तो हो सकता है कि करीना और उनका एज डिफरेंस व्यूअर्स को थोड़ा ऑड लगे, तो उनको लगता है कि इससे उनकी इमेज पर फर्क पड़ सकता है। लेकिन बॉलीवुड की टॉप स्टार में से एक करीना को फिल्म के लिए ना करना क्या उनका सही कदम है, ये उनके फैंस ही डिसाइड करें। लेकिन करीना को ये सुनकर थोड़ा झटका जरूर लगेगा कि बॉलीवुड में ऐसा भी कोई है जो उनके साथ काम करने को मना कर चुका है। Well, with this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.